Hello students, welcome to the online class of Nirmala Happy School, and this is your science video class. In our previous video we have discussed the chapter number 1, nutrition in plants, and to continue in that process I am starting the second video of this chapter. So let's start the chapter. In this video we will discuss the modes of nutrition. As I told you in your previous video that there are the two types of modes of nutrition. First is autotrophic and second is heterotrophic nutrition. In this video we will discuss the autotrophic nutrition in detail. So let's start with the very first question, that is, what is photosynthesis? Here it is. Plants prepare their food with the help of certain raw material that they gather from their surroundings. In surrounding we can find the following materials: water, carbon dioxide, sunlight, minerals, and chlorophyll. The process by which the plants prepare their food by using these raw material is called as photosynthesis. Now we will learn the working of each participant material, that is water. It is absorbed from the soil by the roots. It means the water transported to the plants through the roots from the soil. The roots are the transportation material of the water. So the xylem is a part which is present in the roots of the plant through which the water is transported from the roots to the leaves. And carbon dioxide, leaves of the plants absorb the carbon dioxide from the air. एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें कुछ अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, that carbon dioxide gas is absorbed by the plants through the leaves. And how it is absorbed we will discuss in further topics. In the process of photosynthesis the oxygen is given out as a byproduct. It means photosynthesis की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एब्जॉर्ब गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो गैस हमें प्रोड्यूस होती है उसमें से जो मिलती है वो गैस होती है ऑक्सीजन. And that oxygen gas is needed by the animals and human being for their survival. We all know that without oxygen we cannot survive. The leaves have a special structure called chloroplast. Leaves के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट. एंड उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ प्लेट्स जैसी स्ट्रक्चर होती है. ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये डायग्राम में दे रखा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. एंड वो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसकी सन एनर्जी, हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है. एंड दैट इज केमिकल एनर्जी विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. सो नेक्स्ट इज carbon dioxide gas. The carbon dioxide is absorbed by the leaves through the minute opening on its underside. They are known as stomata. Stomata leaves के ऊपर एक छोटे छोटे से छेद होते हैं, and these stomata are surrounded by the bean-shaped cell called guard cell on the either side. उसमें एक छोटे छोटे से छेद बने होते हैं जिसमें बीन जैसा एक शेप बना होता है दोनों साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे. इनको अपन गार्ड सेल बोलते हैं. द वाटर इज टेकन अप इनटू द लीव्स एंटर द गार्ड सेल. हमें पता है कि हमें वाटर तो जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है. कहां से कहां तक, रूट से लीव्स तक. तो जब वाटर जो है वो रूट से लीव्स तक पहुंचता है तो लीव्स में जब वो गार्ड सेल में एंटर करता है वाटर, देन द गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्वेल होती हैं, कई बार
एक्सपैंड होती हैं एंड आर पुल्ड अपार्ट मेकिंग एन ओपनिंग स्टोमेटा, और वो एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए आप, इसकी ओपनिंग हो रही है, राइट। एंड व्हेन द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द गार्ड सेल, अब जैसे गार्ड सेल में पहुंच गया, अब उसमें से लूज हो जाएगा वाटर, उसका यूज हो जाएगा। एंड दे श्रिंक एंड पोर क्लोज, अब फिर वो धीरे धीरे, जैसे जिसमें वाटर बढ़ता है तो वो खुल जाता है, अब जैसे से वाटर निकल गया तो वो श्रिंक हो जाएगा। इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, पोर की क्लोजिंग हो रही है। एंड जैसे ये पोर क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं, इसी टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट उस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट जो गैस बनी है वो इसमें से एक्सचेंज हो रही है। तो जो लिख रखा है इसमें, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस वाया द स्टोमेटा। एंड वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, जब वाटर का ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है फ्रॉम द रूट्स टू द लिव्स। दिस इज अ example of the photosynthesis process by the flow chart. We know that the water is needed absorbed from the roots, and the carbon dioxide is which is entered to the stomata of the leaves, and the chlorophyll which is already present in the green plants and which is used, the working of chlorophyll is to use the light energy of the sun, and that light energy is converted into the chemical energy which ultimately convert into the oxygen and the another product, that is food, sugar, and oxygen is given off into the air. ऑक्सीजन जो है वो एयर में ट्रांसमिट हो जाती है, जबकि ये शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्टार्च के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स एंड फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। एंड दिस इज अ रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इट मीन्स to continue to the process, we need 6 molecules of carbon dioxide gas and 6 molecules of water to form a 1 molecule of organic matter, that is sugar. This is the formula of sugar, C6H12O6, and the 6 molecules of oxygen are given out into the atmosphere, and that sugar is converted into starch. The food produced by the photosynthesis is starch, and starch is a carbohydrate. Starch जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमें पता है कि जो न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं, द पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, द बैलेंस डाइट, carbohydrate is very necessary, and this food is transported to the all the parts of plants through the network of a pipe like structure that is called phloem. So there are the two parts inside the plant. First is xylem, which is used for the transportation of water from the roots to the leaves of the plant, and the second part is phloem, which is used for the transportation of the food to the all the parts of the plant. If there is no green plants, there will be no photosynthesis process. अगर कोई भी एक ग्रीन प्लांट हमारे अर्थ में मौजूद नहीं होगा तो कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। ग्रीन प्लांट्स जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, एंड देयर टू नो फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म, hence all organisms are directly or indirectly depend on the plants for their nutrition. What are the points to be remembered? First is starch produced during the photosynthesis contain the carbon, hydrogen and oxygen. स्टार्च जो प्रोड्यूस होता है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसमें 3 मेन कंटेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दीज आर यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स और प्रोटीन। तो जो फैट्स और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं वो सिंथेसाइज किसके थ्रू होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो स्टार्च बनता है वो इसमें कंटेंट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज होते हैं
कंटेंट से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो है फैट्स और प्रोटीन। सेकेंड, प्रोटीन कंटेन द नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या कंटेन होता है? नाइट्रोजन कंटेन होता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमोसफेयर थ्रू द सॉइल। जो कि सॉइल के अंदर, आपको पता है सॉइल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एटमोसफेयर में, हमारी जो मोस्टली एयर एटमोसफेयर है उसमें 3 तरह की गैसेस मोस्टली, द 2 gases are mostly abundant, found in abundant. First is 78% nitrogen and 21% oxygen. 1% gases is other gases, in which the 0.5% is carbon dioxide gas. So the nitrogen, which is contained by the protein, and in protein we are getting as a nutrient. So protein contains the nitrogen gas, and which is obtained from the atmosphere through the soil we are getting. एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स डायरेक्टली। जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के थ्रू हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं करते कि एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली नाइट्रोजन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं राइजोबियम, that convert the atmospheric nitrogen into the water soluble nitrogen compounds। जो कि वाटर, ऐसी नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करता है जो कि वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, और वो सॉल्यूबल वाटर के अंदर हो जाता है और वो वाटर के थ्रू हमारे तक ट्रांसमिट हो जाता है। एंड द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म मिक्स विद द सॉइल एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। दिस इज द रीजन व्हाई द फार्मर यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। टू समराइज दिस टुडेज डिस्कशन, वी विल सी द एनिमेशन मूवी ऑन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट दैट मूवी। फोटोसिंथेसिस करना प्रारंभ करो। सूर्य चमक रहा है तो उसका उपयोग करो। मालूम है, परंतु मेरे पत्तों को विश्राम की भी जरूरत है। तुम्हारे पत्ते कभी नहीं थकते, उनका काम ही फोटोसिंथेसिस करना है। क्या तुम्हें मालूम है इस संसार के लिए हमारा काम करते रहना कितना महत्वपूर्ण है? पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों से किया गया भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधों से मिलता है। उदाहरण के लिए सेब के पेड़ से सेब मिलता है और रोटी बनाने के लिए उपयुक्त आटा गेहूं के पौधों से मिलता है। मांस बकरे से मिलता है और हम सभी को मालूम है कि बकरे प्राणी हैं, पौधे नहीं। ठीक है, परंतु बकरा क्या खाता है? वह घास और पत्ते खाता है, पौधे। अतः हम सभी जो भोजन करते हैं वह सारा पौधों से ही आता है। परंतु पौधे क्या खाते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों को अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए अनेक वस्तुओं की जरूरत होती है। जब बारिश होती है, मिट्टी पानी को सोख लेता है। पौधे अपनी जड़ों से वही पानी लेते हैं। जड़ों में जाइलम और फ्लोएम नामक नलियां होती हैं। जाइलम जड़ों के अंदरूनी भाग में होते हैं तथा फ्लोएम बाहर भागों में होती है। ये नलियां भूमि से पत्तों तक जल तथा खनिज लाने में मदद करती है। पत्तों के निचले भाग में स्टोमेटा नामक छोटे-छोटे संग्रह होते हैं, जिनके द्वारा पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड की सांस लेते हैं। अब जो कि हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी मौजूद है, हम फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार हैं। ठीक है? गलत।
यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण घटक को भूल रहे हैं और वह है सूरज। अब वह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अधिकतम कार्य पत्तों में ही होता है। यदि हम एक पत्ते को काटकर माइक्रोस्कोप में देखें तो बाहरी कोशिका के एन नीचे एक परत मीसोफिल नामक लंबी कोशिका होती है। इन मीसोफिल कोशिका के अंदर छोटे क्लोरोप्लास्ट नामक ग्रंथियां होती हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक विशेष रासायनिक होता है। यह क्लोरोफिल ही पत्तों को हरा रंग देता है। जब सूरज की प्रकाश ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट द्वारा संग्रहित की जाती है, उसे ग्रानम में ढेर किया जाता है। उसमें एक परत होती है जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। इन परतों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। अतः याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूरज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज या चीनी वह भोजन है जिसे पौधे ने अपने लिए बनाया है। पौधे के सभी भागों में वितरित किया जाता है। ऑक्सीजन यहाँ व्यर्थ है जिसे पौधे निश्वास के समय बाहर निकालते हैं। लोग तथा प्राणी इसी ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए करते हुए जिंदा रहते हैं। Now we'll discuss now the video is going to end here, and in our next video we will discuss the heterotrophic nutrition. Thank you.